going to be Kalpesh. Open the bowling attack from Amar Kasne. First mandatory power play. Short Therman, point gully, cover inside the ring, short fine leg, square leg and wide mid on. Right arm over the wicket. First ball away from the office stump. No ball signal from umpire. Out of the pitch. Well, that was a quick delivery from the bowler, but it was outside the crease, and it's not a good start for the bowler. Kalpesh is the bowler in this first over. Good opportunity to swing the bat for the batsman Shailesh. He's a good all-rounder for Kurun team. Yes. This time beauty. What a comeback. Just over the stumps. Lovely ball indeed up to the batsman. Good delivery. Nice line there, just outside the off stump. And that is the area where you need to target on this particular wicket. The bounce is variable. Sometime ball bounces bit more, sometime it doesn't. Yeah, sometime ball is keeping low around the office stump. This time not a very good stroke, short arm pull and finally batsman on his way. Choice from the batsman, try to pull this ball around the office stump and does not just the bounce of the ball. Yes, I totally agree with you. He could have played that one through the offside. He could have cut that one, or even he could have played a backward punch on that delivery, but he decided to go over the onside. He attempted a pull shot and he got it horribly wrong, totally mistimed it, and Shailesh is out without scoring. This is the 100th wicket so far in Super Trophy. 76 wickets so far. Kalpesh delighted there, claimed the very important wicket of Shailesh, who is out for duck. In place of Shailesh, new batsman Subhash. This time it's over the infield, typical power play shot, and finally three fielder after it, batsman gets two. And that was really a good looking shot from Vaibhav Patil, and Vaibhav Patil loves to play here on this particular ground. He has a very good track record as well. He has scored some fastest 50s as well on this venue. So he knows this cricket ground pretty well, just like back of his hand. Vaibhav Patil off the mark with 2 and Mitesh 11 Kurund 3 for the loss of 1 wicket. Kalpesh ball this time, mighty blow, huge hit, 6 runs. What a great shot. That in replay, it's a towering hit from Vaibhav Patil. He's such a strong man and powerful striker of tennis cricket ball. Hard hit. Not easy against the breeze, but this is a terrific timing. What a hit, huge one. Plenty of power behind the stroke, tremendous timing, 6 runs. So Vaibhav Patil frees his arms now. He is on 8 and Mitesh 11 Kurund 9 for the loss of 1 wicket. Mitesh 11 Kurund, they are batting first in this vital match. It's a first round game and it's a second day of Super Trophy 2021 Padga. Superbly organized tournament by Niva Patil, Trishul Thakre and Roshan Patil. These are 3 focus men of this tournament and well associated by Padga tennis cricket. 9 runs for the loss of 1 wicket. They have lost an early wicket, but Vaibhav Patil is playing his natural game. Yes, large batting to follow and interesting to see in second inning because Neva, one of the great in-cutter bowler, but now Vaibhav on his strike now. He is on 8, help of 1 6 and Kalpesh
in previous 2 balls consider 8 runs. Yes, Niva Patil can bowl, but I think he's playing as a batsman in this team. Yes, but one of the great all-rounder in past time also. This time try to punch straight to covers, and with the stroke they threw for a quick single. 1-2 score now. His score moves up to 10 for the loss of 1 wicket. Couldn't time it well. Vaibhav Patil actually was trying to bisect the fielders at point and cover point. The backward point is there, backward point and cover point. But the ball hit on the inside half of the bat. But still he managed to get a single. So score moves up to into double figures, 10 runs on the board. Now Subhash on his strike. Today is a heavy breeze running over the ground. Ideal cricket condition. Terrific atmosphere of cricket in Super Trophy. Super condition. Kalpesh. But this time uses feet and just over the stumps, well collect by wicketkeeper. Fine delivery from Kalpesh. Now Vaibhav having a word with Subhash. That marks end of the first over. Score is 10. एक ओवर की समाप्ति 10 रन मितेश 11 कुरुंद के बने, 1 विकेट गिराए. कुल मिलाकर हम देखें तो पहला ओवर मिला जुला ओवर कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी बॉलर खुश रहेंगे कि पावर प्ले में 10 रन ही खर्च किए, बहुत अधिक तो नहीं माने जाएंगे इस ग्राउंड को देखते हुए, और एक बहुमूल्य सफलता भी मिली है. और देखिए पिछले जो 3 मैचेस हुए 2 मैचेस चेस करके जीते गए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, और 1 मैच 1 रन से हारा गया. इसी बीच मंच पर शुभागमन हुआ है कासने के माननीय श्री भूषण दलवी साहब का. आपका हार्दिक स्वागत है. उनको हम एक्शन में भी देखेंगे कासने टीम की ओर से. शायद इस मैच में तो नहीं खेल रहे हैं, इंजर्ड है. जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द स्वस्थ होंगे, लेकिन उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ सुपर ट्रॉफी 2021 में. 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. और भगवान भुईर फैमिली में अमर स्पोर्ट्स कासने काफी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं. जब से पीटीसी बना है, समय में कोऑपरेट करें प्लीज. आज 8 मैचेस हमें खिलाने. गेंदबाजी के लिए लंबे कद के महेश को लगाया गया है. सामना करेंगे वैभव पाटिल. नॉन स्ट्राइक पे सुभाष. अच्छा स्टांस से खड़े रहने का वैभव का. उछाल दिया गया इनको लॉन्ग ऑन के ऊपर. स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन. टोला क्या कहेंगे अजय, बहुत अच्छा फॉलो थ्रू था. वाकई में उड़न खटोला, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, और बिल्कुल उनके पाले में थी. ओवर पिच गेंद थी, सामने खेला और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा को आसानी से क्लियर किया. ये दूसरा सिक्सर वैभव पाटिल के बल्ले से. वैभव सॉफ्ट हैंड वाला क्रिकेट खेलना बहुत कम जानते हैं, मुझे लगता है वो इसी तरह से बैटिंग करते हैं. हवा के साथ साथ घटा के संग संग अब बल्लेबाजी चलती हुई, और कुल स्कोर है 16 रन. मौसम बहुत ही खुशगवार. सर्दियों का महीना अब शुरू हो चुका है, और क्रिकेट का बुखार भी अब पड़गा परिसर में सुपर ट्रॉफी से शुरू होता हुआ. महेश राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फिर आगे रखा था. क्या गेंद मैदान के बाहर. यस 6 रन. बैक टू बैक दूसरा सिक्सर. के लिए ये काफ़ी भाग्यशाली मैदान है. मैंने कई बार देखा है उन्होंने यहाँ पर विस्फोटक पारियां खेली है, और आज भी कुछ वही नज़ारा है. लगातार 2 छक्के और गेंदबाजी में गलतियां करते हुए महेश. बिल्कुल स्लॉट में बॉलिंग हो रही है, और वैभव बड़े ही खतरनाक बैट्समैन है. धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इस समय. स्कोर हुआ है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर. भाग्यशाली है ने वो अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं, और वाकई में कमाल की बल्लेबाजी. घर में घेरना उनको मुश्किल है.
कुछ अलग तरीके की गेंदबाजी की ज़रूरत मुझे लगता है यहाँ पर गेंदबाज को करनी होगी। अमर स्पोर्ट्स कासनी टीम को कुछ अलग किस्म की बॉलिंग की ज़रूरत है। देखना है बदलाव करते या नहीं बॉलर। और शॉर्ट पिच गेंद थी, गुड लाइन पे पड़ने के बाद थोड़ा बाहर की जानिब भी कटी और थोड़ी सी रुक कर आई थी गेंद। जी हाँ, थोड़ा सा लेग कटर की तरह ही किया था उन्होंने। ज़्यादा रफ्तार तो नहीं थी लेकिन मूवमेंट था। गेंद कट हुई और लेंथ में परिवर्तन किया गया। पहली दो गेंदें ओवर पिच करने के बाद ये अच्छी गेंद रही, गेंद खाली चली गई है। केवल दूसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। आज का ये कुल मिलाकर चौथा मैच और पहले राउंड का आज का अंतिम मैच है। मैच फुल टॉस गेंद और सीधा फील्डर के हाथ में, लेकिन कैच छूटता हुआ वहां पर। जीवन दान मिला है और ये महंगा पड़ सकता है जिस तरह वैभव पाटिल बल्लेबाजी कर रहे। समीर थे फील्डर वहां पर। बहुत ही आसान कैच था और वैसे भी हम देखें तो पहले ही काफ़ी डैमेज कर चुके हैं गेंदबाजी को वैभव, और इस तरह से फील्डिंग होगी तो आने वाले समय में और ज़्यादा विस्फोटक अंदाज में वो बैटिंग कर सकते हैं और ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है जहाँ तक अमर स्पोर्ट्स कासनी टीम का सवाल है। अच्छा मौका आया था बैट्समैन को आउट करने का, लेकिन समीर द्वारा गलती। गलत पते पे गेंद गई थी शॉट के हिसाब से। इस मरतबा हुक कर दिया है, फिर हवा में गेंद है, फिर वही खिलाड़ी है और फिर 4 रन के लिए गेंद पहले बाउंस पे बाहर। महेश ने निराश किया है। 18 रन खर्च किए, मौका ज़रूर क्रिएट किया था उन्होंने लेकिन कैच भी ड्रॉप हुआ उस ओवर में। तो कुल मिलाकर पावर प्ले का जो खेल है वो कहीं ना कहीं मितेश 11 के पक्ष में कहा जा सकता है। 28 रन अच्छा स्कोर है। 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं और बल्लेबाज चाहेंगे कि ये औसत आखिर तक कायम रहे और यही औसत आखिर तक कायम रहता है तो 5 ओवर में 70 रन बहुत अच्छा टोटल रहेगा। यस, क्योंकि कल के और आज के मैचेस में थोड़ा अंतर नजर आ रहा है। अगर पहले मैच को निकाल दे तो आज के मैचेस काफी कट टू कट जा रहे हैं। हालांकि कल भी हमने देखा था कि चेस करने वाली टीमें ज्यादा जीत रही थी, जो कि हम विश्व कप में भी देख रहे हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण है। कासनी टीम की कैप्टन से निवेदन है कि प्लीज समय के मामले में सहयोग करें। और पूरे विश्व कप पे नजर डालते हैं तो ओपनर और बाद के खिलाड़ी जो 4-5 बैट्समैन है उनके बाद के खिलाड़ी 6-7 नंबर के जो बल्लेबाज है, जो ऑलराउंडर है, उनके परफॉर्मेंस विश्व कप में लाजवाब रहे। जी हाँ, पहले सेमीफाइनल में जिमी निशम और कल के सेमीफाइनल में हमने देखा मार्कस टॉयनिस को। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए कल्पेश, बल्ले के अंदर लगी, पीछे सरक रही है, रोकने में सफल होंगे। रिले फील्डिंग हो रही है लेकिन बहुत देर हो गई है। 3 रन बने, हालांकि शॉट अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, अंदरूनी किनारा लगा था, फ्रेंच कट, लेमन कट जो चाहे आप कह सकते हो, लेकिन स्टंप्स के नज़दीक से गेंद गुजरी और 3 बहुमूल्य रन मिले हैं सुभाष मोरे को।
यस, चाइनीज कट भी कहा जाता है, लेकिन आपको तो पता है चाइना का सामान चला तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर उड़ाना चाह रहे थे पैरों के सामने, हालांकि जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग पे गई, 1 रन बनता हुआ स्कोर 32 रन, 1 विकेट। अच्छी बॉलिंग करते हुए कल्पेश, डिसिप्लिन नजर आ रहा है उनकी बॉलिंग में। शुरुआत यदि देखें हम उनके स्पेल की तो नो बॉल से हुई थी, लेकिन उसके बाद बढ़िया लाइन और लेंथ मेंटेन की है उन्होंने। 32 रन, सुभाष सामना करें कल्पेश का। 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। और बढ़िया गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल रहा था गेंद में, बीट कर दिया बैट्समैन को। मुझे लगता है कि बॉलर ने भी ये सोचा नहीं होगा कि इतना बाउंस इस गेंद में उनको मिलेगा। ये विकेट का चरित्र है, वही इलाका हम देख रहे हैं। पहले ओवर में वहां से एक गेंद थोड़ी नीची भी रही थी, उस एंड से गेंदबाजी हो रही है तो गेंदे अनइवन बाउंस दे रही है। इस मर्तबा पुल चाबुक शॉट है, नहीं रुकेगा, 6 रन। क्वालिटी स्ट्रोक देखने को मिला है। पिछली गेंद की तरह इस गेंद में भी थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से बाउंस को काउंटर किया है और बढ़िया टाइमिंग देखने को मिली। शानदार सिक्सर और ये पहला छक्का सुभाष मोरे का। 38 पे पहुंचा है स्कोर, एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रही है इस वक्त मितिश 11 कुरुन कल्पेश। ओ बढ़िया वापसी, सवाल पूछा हाउ इज दैट, लेकिन चुरा लिया है तुमने जो रन को। बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। 1 रन चुराते हुए बल्लेबाज 39 रनों पे पहुंचा है स्कोर। धीरे धीरे मौसम गर्माता हुआ दोपहर का सत्र चल रहा है। सुबह यहाँ पर ठंड रहती है, लेकिन दोपहर में थोड़ी सी गर्मी ज़रूर महसूस होती है। हालांकि बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ पर सुपर ट्रॉफी में पड़गा में। यह हवाएं दरख्तों से टकरा के आ रही है। इस मर्तबा फिर से हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, पैरों के सामने टक करते हुए ऑन साइड में 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 3, कुल स्कोर है 40। बहुत अच्छी सोच की गेंदबाजी मैं समझता हूँ कल्पेश की। खासतौर पर हमने देखा कि जब भी वैभव उनके सामने आए तो उन्होंने पैरों की तरफ गेंदबाजी की, यानी कि कहीं ना कहीं रूम नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वैभव को जब रूम मिलता है तो वो बहुत ही लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं। 3 ओवर के बाद 40 रन, अच्छा स्कोर अभी तक के खेल में बना लिया है मितेश 11 कुरुन टीम ने। ड्रिंक्स ब्रेक का समय हुआ है, अभी भी 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है इस पारी में, और काफ़ी क्रिकेट इस मैच में भी होना बाकी है और पूरे दिन में अभी भी काफ़ी क्रिकेट बचा हुआ है। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, धनेश 11 कुक से बनाम शिव शक्ति कोशिम्बी। एक और बड़ा मुकाबला, दूसरे राउंड का ये मैच रहेगा। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है टॉस के लिए। धनेश 11 कुक से टीम ने सुबह के पहले मैच में आज परास्त किया जय गणेश वाफाले टीम को। शिव शक्ति कोशिम्बी टीम ने अपना मुकाबला जीता महेश 11 आरजुली टीम के विरुद्ध। बड़ा ही रोमांचक मैच था, 1 रन से महज जीत दर्ज की थी कोशिम्बी टीम ने। उसके बाद पिछले मैच में, जो कि एक और रोमांचक मैच रहा, जय हनुमान वाहुली टीम ने एमएस चिंचोली टीम को मात दी। आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, लेकिन प्रणीत ने 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाए और वो मैच फिनिश किया। बहुत ही रोमांचक जीत रही जय हनुमान वाहुली टीम की। फिलहाल ये चौथा मैच है आज का आपके सामने, मितेश 11 कुरुन बनाम अमर स्पोर्ट्स कास्ट ने। और अभी तक तो अच्छा खासा टोटल हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 2 ओवर्स भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बॉलर्स चाहेंगे कि कम से कम रनों तक सीमित रखा जाए। 55 के करीब कहीं ना कहीं ज़रूर रोकना चाहेंगे। हालांकि आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों भी सेट बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर, वैभव पाटिल और सुभाष मोरे। वैभव के बैट से 3 छक्के निकले हैं 24 पर बैटिंग करते हुए, और सुभाष ने भी अच्छी बैटिंग की है, 15 रन बनाए हैं, 1 चौका और 1 छक्का उनके बल्ले से निकला है।
तो एक अच्छी पार्टनरशिप, पहला विकेट जल्दी गिरा था, आउट होने वाले बैट्समैन शैलेश जो खाता भी नहीं खोल पाए थे। नया ओवर लेकर गौरव गोंदली, एक बढ़िया युवा खिलाड़ी है और सरप्राइज करते हैं कई बार अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को गौरव। टोरना का एंड से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, शायद कदम चूक गए हैं, गेंद की नहीं उन्होंने, डेड बॉल का इशारा। बल्लेबाजों की कोशिश तो यही होगी कि 25-30 रन जोड़े जाए और 70 का आंकड़ा जरूर जहन में है इस समय, जिस अंदाज में अभी तक बैटिंग भी की गई है। और इनमें से एक भी बल्लेबाज अंत तक खेलता है तो ज़रूर 60 प्लस टोटल तो देखने को मिलेगा ही मुझे लगता है। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर में खिलाड़ी है और एक शॉर्ट फाइन लेग, बाकी के 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर। बैकफुट पर जाकर खेला है, हवा में जरूर लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब। 3 खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं। ओ बढ़िया फील्डिंग वहां पर, एक ने अंदर धकेला, खुद बाहर चले गए, दूसरे उठाकर थ्रो करते हुए और डायरेक्ट हिट लगा है। बहुत अच्छा क्रिकेट, गेंद भी अच्छी थी, शॉट भी अच्छा था और उसके बाद फील्डिंग भी बढ़िया। 3 रन इसी बीच कंप्लीट किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि थ्रो भी अच्छा था लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी। ये अच्छा क्रिकेट है। देखिए इस तरह के 3 खिलाड़ी जो ऑफ साइड में वो सर्कल के अंदर है और अच्छी सोच की बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव पाटिल। वैभव की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, बड़े बड़े प्रहार तो करते ही है लेकिन स्क्वेयर ऑफ द विकेट भी वो बहुत अच्छे शॉट्स खेल लेते हैं। हालांकि इम्प्रोवाइज क्रिकेट अधिक खेलते नहीं है, हमने देखा है कि स्विच हिट वगैरह करने की ज़्यादा कोशिश नहीं होती है, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट में ज़्यादा भरोसा जताते हैं। गौरव की है गेंद और ये बहुत ही खराब गेंद है, क्रीज के बाहर, नो बॉल। ये दूसरी मर्तबा देखने को मिला है इस पारी में। पारी की शुरुआत भी कुछ इस तरह की गेंद से हुई थी, क्रीज के बाहर, नो बॉल और अब एक और फ्री हिट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, मितेश 11 कुरुन टीम का 44 रन, मात्र 1 विकेट का नुकसान हुआ है। और विकेटें हाथ में होती है तो हमने तो देखा ही है, वर्ल्ड कप में भी हम वही देख रहे हैं, विकेटें हाथ में होती है तो आप आखिर के जो ओवर्स होते हैं, डेथ ओवर्स, उसमें खुलकर बैटिंग कर सकते हो। ये बात टेनिस बॉल क्रिकेट में भी लागू होती है। निडर होकर बैट्समैन बल्लेबाजी करते हैं। ब्रेड गेंद घुमाया है और बढ़िया तरीके से, कोशिश बहुत अच्छी थी फील्डर की लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सुभाष मोरे। हमने देखा है कि उन्होंने 2-3 आक्रामक शॉट्स खेले हैं, 2 चौके और 1 छक्का उनके बैट से निकला है। और खास बात ये रही कि थोड़ा वेट करते हुए ही वो शॉट्स खेल रहे हैं, गेंद को अपनी तरफ आने दे रहे हैं, उसके बाद प्रहार कर रहे हैं। अब जिस तरह से स्कोर बन रहे हैं 48 रन हुए, कहीं ना कहीं चिंतित रहे होंगे अमर कास्ने के कैप्टन। विकेट की सख्त जरूरत इस समय अमर स्पोर्ट्स कास्ने टीम को। ये पार्टनरशिप जो बन रही है, अच्छी पार्टनरशिप, उसको तोड़ना होगा। बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर, छकाया बैट्समैन को। इस तरह की बॉलिंग की आवश्यकता है डेथ ओवर्स में। भले ही आपको विकेट ना मिले लेकिन यदि आप बल्लेबाजों को खामोश भी रखते हो तो एक तरह की आपकी वो मनोवैज्ञानिक जीत मानी जाती है। डॉट बॉल की कीमत बहुत अधिक होती है ऐसी सिचुएशन में। अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए गौरव, बाउंड्री पर 5 खिलाड़ी जिसमें से 4 खिलाड़ी ऑन साइड में रखे गए हैं, यानी कि ऑन साइड में काफी ज्यादा प्रोटेक्शन, ऑफ साइड में 1 खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, एलिवेशन अधिक नहीं है। बढ़िया फील्डिंग डीप मिड विकेट खिलाड़ी द्वारा। 1 ही रन लेने का अवसर इस दफा मोरे के पास और इस सिंगल की बदौलत स्कोर 49 पर पहुंच चुका है। पिछले 2 मैचेस में 60 के ऊपर का टारगेट हमें देखने को मिला है। हालांकि पिछले मैच में 57 का मेरे ख्याल से टारगेट था, यस, उससे पहले 60 प्लस का टारगेट देखने को मिला था और दोनों मैचेस बहुत रोमांचक हुए। ये मैच भी कुछ उस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी लाइन, इस बार 2 मन में थे शायद बैट्समैन, जोरदार अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। बल्ले के काफी करीब से गेंद गुजर गई थी विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। डॉट बॉल। अजय, कल एक जो घटना हुई, क्या वजह थी कि
वार्नर ने रिव्यू नहीं लिया था। जी हाँ, वो एक कंट्रोवर्शियल डिसमिसल रहा डेविड वार्नर का। और देखिए उसके बाद मैच काफी बदल भी गया था। ऑस्ट्रेलिया एक समय के लिए थोड़ी बैकफुट पर भी चली गई थी क्योंकि उसके बाद विकेट्स गिरे थे, लेकिन वार्नर को शायद लगा कि किनारा लगा था, लेकिन रिप्ले में स्पष्ट पता चला कि बिल्कुल भी किनारा नहीं लगा था और वार्नर निकल चुके थे पेविलियन में। काफी जोरदार अपील की थी यहाँ पर इस मैच इस गेंद पर, लेकिन उत्साह में ज्यादा थी। अगली गेंद इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं विकेट कीपर गेंद के नीचे और आसान सा कैच, बहुत ही बड़ा झटका, काबिले तारीफ गेंदबाजी अंडर प्रेशर गौरव द्वारा। शिम्बी के कैप्टन और धनेश स्पोर्ट्स कुक्से के कैप्टन दोनों को ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है टॉस के लिए। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है, 1 कम 50 और विकेट गिरी है 2। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं सोनिया पाटिल, सोनिया पठारे बल्लेबाजी को आए हैं। और डेथ ओवर में हमने देखा है कि बल्कि चेसिंग में डेथ ओवर में ज्यादा रन आए बनिस्बत पहले इनिंग के। हालांकि कोशिम्बी टीम ने जब पहले बैटिंग की थी तो उन्होंने आखिरी ओवर में काफी रन्स बनाए थे। सूरज ने 5 छक्के लगाए थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। 37 रनों की नाबाद पारी उन्होंने खेली कोशिम्बी टीम के लिए, मैन ऑफ द मैच भी बने थे। तो इस ओवर में देखना है कि कितने रन्स बना पाते हैं बल्लेबाज। सोनिया पठारे का जहाँ तक सवाल है, ये अनुभवी खिलाड़ी है, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, अच्छे स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। सुभाष मोरे डटे हुए हैं क्रीज पर, तो देखना है स्ट्राइक इस समय सोनिया के पास है। क्या वो पहली गेंद पर बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे या फिर स्ट्राइक पर लाने का प्रयास करेंगे अपने कप्तान को, ये देखने वाली बात है। गेंदबाजी के लिए आते हुए अमोल दर्बी, तो चलिए अनुभवी खिलाड़ी के सामने अनुभवी गेंदबाज भी है। क्या 60 के अंदर रोक पाएंगे अमोल, ये देखने वाली बात। शॉट ऑफ लेंथ पुल किया है, हवा में गेंद, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी इंटरेस्टेड, लेकिन मौका नहीं है। 6 रन। फायदा रहता है, थोड़ी सी बैक ऑफ लेन गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया और हम कह सकते हैं लगभग शॉट को देख के कि आधा हुक आधा पुल नजर आया, लेकिन टाइमिंग लाजवाब और स्क्वायर लेग के लिए मौका नहीं। 6 रन। आज हवा आड़े नहीं आ पा रही बैट्समैन के, लेकिन हवाएं भी अब देखिए उसी दिशा में बह रही है, यानी कि दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए ऑफ साइड से लेकर ऑन साइड में पूरब से पश्चिम की तरफ हवाएं बह रही है इस मैदान पर। और ज़रूर कहीं ना कहीं पिछले स्ट्रोक में थोड़ा सा हवा का फायदा मिला है बल्लेबाज को, तो उस एंड से बॉलिंग करना दूर वाले छोर से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब एंगल चेंज किया, एंगल डिलीवरी, लेकिन दिशाहीन गेंद वाइड। स्कोर 56 पर पहुंच चुका है। 5 गेंदें शेष है, एक ही गेंद में 7 रन खर्च किए हैं अमोल दर्बी ने, तो ये बहुत बड़ा ओवर बना सकते हैं बल्लेबाज। मौका है उनके पास, गेंदबाज को वापसी करनी होगी। इस बार सामने उछाल दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है। ओ कोशिश बढ़िया, कोशिश बहुत ही अच्छी, कैच हालांकि छिटका है लेकिन बाउंड्री जरूर बचाई है, छक्का बचाया है वहां पर फील्डर ने। जबरदस्त क्रिकेट, अच्छी नोक झोंक गेंद और बल्ले के बीच में, और फील्डर्स भी अच्छा योगदान देते हुए 2 रन इसी बीच लेने का मौका था सोनिया के पास। वाकई में कमाल की फील्डिंग, जम करके, हालांकि ऊंचे कद के, और कहा जाता है आपके ऊंचे कद के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट पे चाहिए। कमाल की फील्डिंग की वहां पर डीप में, लॉन्ग ऑन पर गौरव थे वहां पर जिन्होंने पिछला ओवर भी बहुत अच्छा किया, 9 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किया। तो ये ऐसे खिलाड़ी है, गौरव को हम देखते हैं होल हार्टेड क्रिकेटर आप कह सकते हो, कि पूरा उनका ध्यान होता है खेल में और हमेशा 100% देने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर बल्ले से हो या गेंद से।
या फिर फील्डिंग में इस बार पैरों के सामने से लॉफ्ट किया है, फिर से गौरव एक्शन में और फिर से छक्का तो बचा ही लिया है उन्होंने। कमाल का क्रिकेट हो रहा है यहाँ पर पड़गा में कुरुन क्रिकेट ग्राउंड पर। फिर से 2 रन। क्या बात है, अमर कासने कह रहे होंगे कि वाकई में गौरव आप हमारे गौरव हैं। कमाल की फील्डिंग, 2 मर्तबा बैक टू बैक आप सिक्सर को कन्वर्ट करते 2 रन में। और बैट्समैन को भी देखिए, वो भी सोच रहे होंगे, पहले उनके दाईं ओर मारा तो बचाया, अब बाईं ओर मारा तो बचाया। और देखिए देखने वाले सोच रहे होंगे कि कैच ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन प्योर क्रिकेटिंग सेंस से हम देखें तो यहाँ पर गौरव ने 2 गेंदों पर 8 रन बचाए अपनी टीम के लिए। यस, क्योंकि कैच अगर लेने जाते तो बाउंड्री को क्रॉस करते। और वो सेमीफाइनल न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, जॉनी बेस्टो ने कैच लिया जरूर था, गेंद को फिर बाद में फेंका भी, लेकिन तब तक वो बाउंड्री को छू चुके थे और वो 6 रन मिले थे जेमी निशम को। और वही गलती 50 ओवर के फाइनल में ट्रेंट बोल्ट ने की थी। जी हाँ, एक और जबरदस्त स्ट्रोक, इस बार पुल, पावरफुल, डिलाइटफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, 6 रन। अब बल्लेबाज ने भी सोचा कि गौरव का पीछा छोड़ा जाए, गौरव की तरफ खेला ही ना जाए। हाफ ट्रैकर गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन के। ये जो बैट्समैन है, इनका कद भी ऊंचा और शॉट भी ऊंचे लगा रहे। कमाल की बल्लेबाजी सोनिया पठारे की। स्कोर 66 पर पहुंच चुका है, 66 केवल 2 विकेटों के नुकसान पर। एक विशाल स्कोर यहां पर देखने को मिल रहा है मितेश 11 कुरुन टीम द्वारा। होस्ट टीम, आप बिल्कुल आपने सही कहा, होस्ट टीम आप कह सकते हैं इस टूर्नामेंट की मितेश 11 कुरुन को। घरेलू मैदान पर खेल रही है ये टीम और उसका पूरा फायदा उठाते हुए उनके बल्लेबाज, पहले वैभव की धुआंधार बैटिंग, सुभाष मोरे ने अच्छा यहाँ पर साथ दिया उनको, और अब सोनिया अच्छी गेंद इस बार फिर से उठाना चाहते थे। इस बार लेंथ में थोड़ा परिवर्तन, थोड़ी सी आगे रखी गेंद और बीट किया बैट्समैन को। दोनों टीमों के कैप्टन को तुरंत ही रिपोर्ट करना है, धनेश कुकसे और शिव शक्ति। जी हाँ, धनेश 11 कुकसे और कोशिम्बी के बीच में अगला मैच। फिर से स्विंग एंड मिस, लेकिन गेंद निकल गई है, विकेट कीपर द्वारा गलती और गेंद सीमा पार। 4 रन 22 के रूप में। आइए हम आपको टॉस की तरफ लिए चलते हैं और टॉस करने के लिए इस वक्त अजय खरत टॉस बॉक्स में जा रहे। थँक्यू सो मच सिद्दीकजी भाबे. विनंती करतोय व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय भाई पाटील यांना आपल्या शुभ हस्ते आम्ही पुढील सामन्याची नाणेफेक करणार आहोत. सो प्लीज आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. धनेश 11 कुकसे विरुद्ध शिवशक्ती कोशिंबी दुसऱ्या फेरीतील आजचा हा पहिला सामना असणार आहे. दोन्ही संघांनी चांगलं क्रिकेट खेळलेलं आहे पहिल्या फेरीच्या सामन्यामध्ये. माननीय श्री भाई पाटील साहेबांचं हार्दिक स्वागत टॉस बॉक्समध्ये. आणि टॉस कॉइन ज्या स्पर्धेची चर्चा आहे ती स्पर्धा अर्थात सुपर ट्रॉफी 2021 आणि दुसऱ्या बाजूला आपण नाण्यावर पाहत आहोत पीटीसी. अक्षय कॉल देत आहेत धनेश 11 संघाचे कर्णधार. पीटीसी असा कॉल आहे आणि पीटीसीच येत आहे. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देत असताना पाटील साहेब थँक्यू सो मच. टॉस जिंकला जसा कॉल दिला होता तसं तुम्ही टॉस जिंकलाय देखील. आता निर्णय काय? फिल्डिंग क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. मागच्या मॅचमध्ये जो परफॉर्मन्स तुमच्या टीमचा राहिलाय पूर्णपणे संतुष्ट आहात की अजून काही सुधारणा हवी आहे? नाही संतुष्ट आहे आणि त्यापेक्षाही चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू. या मॅचमध्ये कोशिंबी टीमला किती स्कोर पर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न राहील? 50च्या आसपास. आणि संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे? नाही सेम संघ. सेम टीम आहे. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. टायगर टॉस गमावलाय आणि मला असं वाटतंय की टॉसचा काही जास्त काही परिणाम होणार नाही या सामन्यावर. काय बोलाल? नक्कीच बॅटिंगच घेणार होतो कारण टीममध्ये बॅट्समन चांगले आहेत. जास्तीत जास्त धावा करून समोरच्या टीमवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करू. मागच्या मॅचमध्ये कुठेतरी गोलंदाजी कमकुवत राहिली तर गोलंदाजीविषयी काय वाटतं? ह्या मॅचमध्ये गोलंदाज कसा प्रयत्न करताना दिसतील?
प्रयत्न तर करतीलच, प्रॅक्टिसचा अभाव आहे, पहिलीच टुर्नामेंट, अजून काय प्रॅक्टिस पूर्णपणे चालू नाहीये, चांगले खेळतील पुढे. तुम्ही खूप छान सुरुवात केली होती आणि सूरजने देखील धमाकेदार बॅटिंग केली, फिनिशिंग टच चांगला दिला इनिंग्सला. तर काय वाटतं, खेळपट्टी फलंदाजांसाठी चांगली आहे की गोलंदाजांच्या बाजूने? ती दोन्ही बाजूनी आहे, कधी कुठला चेंडू उचली घेतोय तर कधी खाली राहतोय, त्यामुळं बॉल टू बॉल खेळल्यावर चांगले रन होतात. तुम्ही या स्पर्धेचे आयोजक देखील आहात, एकूणच काय संदेश देण्याचा प्रयत्न असेल खेळणाऱ्या सर्व टीमसाठी? काय नाही, सगळ्यांनी एकत्र येऊन खेळा, क्रिकेटला वरती न्या आणि जास्त करून झाडे लावा आणि झाडे जगवा. थँक्यू सो मच टायगर अँड हॅव अ गुड वन. सो टॉसमधून समाचार असा आहे की दनेश 11 कुक्स वन द टॉस अँड दे हॅव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. तर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तुमचं समालोचनाच्या माध्यमातून मनोरंजन करण्यासाठी आता मात्र सज्ज होत आहेत व्हाईस ऑफ मानेरे राहुल भोईर आणि व्हाईस ऑफ PTC योगेश पाटील. थँक्यू सो मच अजय घरत, थँक्यू सो मच. धन्यवाद अजय आणि धन्यवाद सिद्दीक भावे सर. तर खूप छानपैकी फलंदाजी मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली, ती म्हणजे मितेश 11 करून संघाच्या फलंदाजांच्या माध्यमातून. खास करून सुभाष मोरे असतील, वैभव पाटील असतील, अतिशय जबरदस्त फलंदाजी आणि त्यानंतर सोन्याने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी. टार्गेट आहे 71 धावांचं आणि 71 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी पाहू शकता आपण अमर स्पोर्ट्स कास्ते संघाकडनं सलामीची जोडी खेळपट्टीवर विक्रांत आणि कल्पेश. अमर स्पोर्ट्स कास्ते संघाला कास्तेगावचे मिस्टर शुभम भोईर यांच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद शुभम, तुझं मी सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. माझ्या समवेत आहेत माझे सहकारी समालोचक, माझे परम मित्र राहुल भोईर. त्याचप्रमाणे जबरदस्त कामगिरी गुणलेखिकेच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय ऋतिक शेट्टी आणि स्पर्धा पाहतोय आपण अतिशय चांगल्या प्रकारे चित्रीकरण केली जात आहे GTCच्या माध्यमातून, अर्थात ग्लोबल टेनिस क्रिकेट. तर पहिल्या षटकात सुरुवात करेल गोलंदाज शैलेश. टोलनाका यांकडनं आपण पाहिले तर अतिशय वेगाने वारा पाहतोय, परंतु ही गोलंदाजीला सुरुवात पाहतोय करून विलेशच्या पहिल्याच चेंडूवर जोरदार अपील, परंतु पंतांनी मात्र ते अपील फेटाळले. एसटी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहू शकता निवा पाटील जबरदस्त या ठिकाणी या चेंडूला गॅदर केलं आणि त्यानंतर जोरदार अपील सुद्धा त्यांच्याकडे पाहायला मिळाले. जबरदस्त या ठिकाणी टीम वर्क पाहायला मिळतोय, कारण या हंगामध्ये मी म्हटलं होतं की काही मागील 1-2 सत्रात विचारेल तर वैभव पाटीलची बॅट थोडीशी शांत होती, परंतु या सत्रामध्ये चांगली सुरुवात केली आहे फलंदाजीच्या जोरावर. पुढचा चेंडू अतिशय सुंदर स्क्वेअर कट फटका, 200 चेंडूचा पाठलाग करतायत, परंतु चेंडू अतिशय वेगाने जाऊन धडकतो या सेमीरेषेला. पहिला दमदार चौकार येतो या अमर स्पोर्ट कास्ते संघाच्या डावामध्ये. करावी लागेल योगी, कारण का टार्गेट भरपूर मोठं आहे आणि जेव्हा जेव्हा मोठं टार्गेट असतं तेव्हा तेव्हा चांगली सुरुवात होणं गरजेचं आहे. आणि आता मात्र एक चांगली सुरुवात करण्याचा प्रयत्न अमर स्पोर्ट्स असणाऱ्या टीमच्या माध्यमातून, कारण का पहिल्या इनिंगचा जर विचार केला तर पहिल्या इनिंगमध्ये चांगला खेळ करून टीमचा झाला. एक चांगली धावसंख्या आपल्याला नक्कीच पाहायला भेटली 5 ओव्हरमध्ये. ही देखील मॅच चांगली होईल, अंतिम षटकापर्यंत हा सामना तुम्हाला रंगतदार पाहायला मिळेल यामध्ये शंका नाहीये. हो नक्कीच, कारण अमर स्पोर्ट कास्ते संघाचा राहुल आपण जर विचार केला तर त्यांच्याकडे सुद्धा मात्र 6 ते 7 क्रमांकापर्यंत चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे, म्हणजे हा सामना चुरशीचा होईल त्यात काही शंका नाही. परंतु सुरुवात तुम्हाला मात्र अशाच प्रकारची या ठिकाणी करावी लागेल. खास करून 2 षटकं जी पॉवर प्लेची आहेत त्या 2 षटकावर तुम्ही चांगली फलंदाजी केली तर मात्र या धावांचा तुम्ही पाठलाग करू शकता. पुन्हा एकदा सुंदर ऑफ ड्राईव्ह मिस फील्ड सोन्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो, चेंडू मात्र जाऊन उचलला जातो इष्टा कव्हरच्या दिशेने. चांगलं क्षेत्ररक्षण शेवटच्या मोमेंटला पाहतो आपण सुभाष मोरेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय, परंतु जोपर्यंत चेंडूला फील करतील फेकतील तत्पुरती मात्र फलंदाजाने 3 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, दोघांमध्ये चांगला ताळमेळ पाहायला मिळाला आणि 3 धावांनी संघाची धावसंख्या आता मात्र पुढे जाईल बिनबाद 7. कालचा दिवस ज्या खेळाडूने गाजवला, अर्थात
तब्बल 70 पेक्षा अधिक धाबा त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिल्या. अर्थात विकी स्पोर्ट कुक्षी संघाचा बबलू पाटील याचकडनं स्पेशली निवा पाटील आणि सिक्सर किंग ऑफ कुरून वैभव पाटील साठी मात्र हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद बबलू पाटील, तुमचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. चांगला फटका पाहिला आपण. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने थोडीशी चूक पाहायला मिळाली. शैलेश पुन्हा एकदा. आता मात्र सुंदर डिलिव्हरी, अगदी या फलंदाजाला फॉलो केलं गोलंदाजाने. कोणत्या प्रकारची संधी उपलब्ध नव्हती. काय म्हणशील राहुल या चेंडू बद्दल? चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट गोलंदाजी करणं खूप गरजेचं आहे योगेश, आणि व्हेरिएशन देखील खूप चांगला आपल्याला पाहायला मिळतो. एक चौकार आल्याच्या नंतर बघा किती चांगलं या दरम्यान आपल्याला कमबॅक पाहायला मिळतो. चांगली गोलंदाजी, चेंडू पडल्याच्या नंतर झपकन आतमध्ये आला, पूर्णपणे बीट झाली फलंदाज देखील. चांगली गोलंदाजी. एखादा गोलंदाज असा असतो की एखादा मोठा फटका आला तर त्याच्यावर थोडासा प्रेशर येत असतो, परंतु शैलीश्वर तसा प्रकारचा कोणताही दबाव नाही. इथे मात्र लोअर फुटाची सुंदर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय लॉंग ऑफच्या दिशेने. मिड ऑफला मात्र क्षेत्र शिकवते सुभाष. चेंडूला मात्र गॅदरिंग त्यांना करता आलं नाही, परंतु फलंदाजाने तब्बल 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. चांगले फटकेबाजी होते, परंतु गॅप शोधण्यामध्ये आतापर्यंत फलंदाजांना यश आलं नाही. मागच्या चेंडूवर तिहेरी धाव पाहिली, त्यानंतर डॉट चेंडू आणि आता मात्र या चेंडूवर दुहेरी धाव. एकूण धावसंख्या पाहू शकतो आपण बिनबाद 9 धावा. पहिल्या पॉवर प्ले षटकातील शेवटचा चेंडू. हा चेंडू सुद्धा मात्र सुरेख होता, परंतु त्यापेक्षा अधिक चांगला फटका पाहिला आपण एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. शेवटच्या चेंडूवर चांगला फटका, चौकार येतोय आणि चौकाराने मात्र धावसंख्या इथे पुढे जाईल. ती म्हणजे अमर स्पोर्ट क्लासेस संघाची बिनबाद 13 धावा. चांगला फटका पाहिला आपण शेवटच्या चेंडूवर. फलंदाज कल्पेश बॅटमधनं आपण पाहिलं. पहिल्या षटकाची समाप्ती 13 धावा धाफलकावर. थोडीशी दुखापत आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. विक्रांतला कुठेतरी दुखापत थोडीशी जाणवले. यानंतर पुढची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना धनेश 11 कुक्से वन द टॉस अँड इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट अगेन्स्ट शिवशक्ती स्पोर्ट कोशिंबी. एक या बाजूला पाहिले तर राम ठाकरे असतील, तिसरू ठाकरे, त्यानंतर सूरज ज्याने सुंदर फलंदाजी केली पहिल्या मॅच मध्ये. आणि दुसरीकडे आपण जर पाहिलं तर काही खेळाडू अनुपस्थित आहेत धनेश 11 कुक्से संघाचे, परंतु काय जबरदस्त कामगिरी राहिली ते म्हणजे अतिश मागे असतील, प्रेम पाटील असतील, त्यानंतर अंकलेश पाटील असतील आणि कॅप्टन कुलाक्षय पाटील यांची काय जबरदस्त कॅप्टनशिप पहिल्या मॅच मध्ये पाहायला मिळाली. तर चला क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचं आहे कुरुन संघ. जास्त तुम्ही वेळ खर्च करू नका, कारण आज क्रिकेट रसिकांच्या माहितीसाठी या सायंकाळच्या सत्रामध्ये या सेमीफायनलची मॅच पाहायला मिळेल. कोणता संघ पाहूया पीटीसी मधील अंतिम सामन्यामध्ये धडक देईल. पहिला संघ ठरला कालच्या दिवसामध्ये ज्याने पूर्ण दिवस गाजवला, विकी स्पोर्ट कुक्से. आणि आज पाहूया कोणता संघ क्वालिफाय होईल. 4 दिवसांची स्पर्धा, 1 लाखापेक्षा जास्त अधिक पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये. मारुती सिरीजसाठी इलेक्ट्रिक बाईक आणि कोणता खेळाडू त्या बाईकवर सवार होईल सुपर संडे मध्ये या सर्व चित्र तुमच्या डोळ्यासमोर तुम्हाला पाहायला मिळतील. उद्या मात्र याला आणि पाहायला विसरू नका सुपर ट्रॉफी, कारण का सुपर से भी ऊपर. कारण का उद्याच्या दिवसामध्ये चांगले चांगले संघ तुम्हाला आपल्या नक्कीच पडगा परिसरामध्ये चांगले चांगले संघ आपल्याला पाहायला मिळतात. पण उद्या कल्याण, डोंबिवली, रायगड या विभागातून संघ खास करून खेळण्यासाठी येणार आहेत. एक वेगळी संकल्पना आपल्याला दरम्यान पाहायला मिळेल सुपर ट्रॉफीच्या माध्यमातून. योगी हो नक्कीच. आपण जर पाहिलं तर आज सुद्धा चांगले संघ आहेत, परंतु प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी तुम्ही ह्या संघाने खेळताना पाहता या परिसरामध्ये, परंतु उद्या तुम्हाला नवीन संघ खेळताना पाहायला मिळतील. तर दुसऱ्या षटकात सुरुवात करतोय गोलंदाज सोपान. फटका तर चांगला होता, परंतु लॉंग ऑफच्या दिशेने चांगलं क्षेत्ररक्षण. स्टायलिश प्लेअर सँडी
आणि हेच त्याचं वैशिष्ट्य आहे सँडीचं. त्याच्याकडे तुम्ही कुठलाही क्षेत्र सोपवलं तर मात्र तुम्हाला त्याच स्टाईलनं तो कार्य करत असतोय. हीच त्याची ओळख आहे. परंतु चांगल्या चेंडूने सुरुवात केली आहे गोलंदाज सोपानने. सोपानची उंची पाहिली तर अतिशय किमान 6 फूटपेक्षा जास्त असेल आणि त्याच उंचीचा तो मात्र नेहमीच आपल्या गोलंदाजीसाठी तो फायदा घेत असतोय. थोडंसं करेक्शन आहे कारण विक्रांतला दुखापत नक्कीच झालेली आहे आणि त्याच मुले असं वाटतं की तो कदाचित रिटायर हट होऊ शकतोय आणि तीच स्थिती मात्र पाहायला मिळते कारण त्याच्या पायाला दुखापत झालेली आहे आणि तो त्यांनी मात्र निर्णय घेतला आहे. तर नवीन फलंदाजाने लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये यायचं आहे कारण आपल्याकडे वेळ भरपूर कमी आहे. धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 14 धावा, अजूनही 9 विकेट्स शिल्लक आहेत. आपण अमरस्पोर्ट काचे संघाचा विचार केला तर इथून मात्र कुठेतरी पिच हिटिंग म्हणून एखाद्या फलंदाजाला जबाबदारी स्वीकारावी लागेल कारण टार्गेट खूप मोठं आहे. 71 धावांचा तुम्हाला पाठलाग करायचा आहे आणि त्या धावांचा पाठलाग करायचा असेल तर मात्र या ठिकाणी एखाद्या फलंदाजाला मोठमोठे फटके या ठिकाणी खेळणं गरजेचं आहे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकतो आपण समीर, कारण विक्रांत हा फलंदाज रिटायर हट झाला आहे कारण त्याला दुखापत थोडीशी जाणवली. सोपान पुन्हा एकदा टोलनाका ऐन कडनं अर्ध विकेट आपल्या सुरुवात करेल. प्ले डॉन, जबरदस्त डिलिव्हरी आणि लागतोय पहिला धक्का. अमर स्पोर्ट कासने संघाला. कल्पेश माघारी परतोय फलंदाज बाद. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. प्लेट ऑन विकेट येत असताना कारण याच्या अगोदर आपण बघितलंय का खेळाडू मात्र या दरम्यान रिटायर झाला कारण का तो दुखापत ग्रस्त असल्या कारणानं पूर्णपणे फिट नसल्या कारणानं त्यांनी देखील मैदान सोडलं कारण का सीझनला आताच कुठे सुरुवात झाली आहे आणि आता मात्र नक्कीच पूर्णपणे जर आपण फिट नसाल तर रिक्स घेणं एवढं गरजेचं नाहीये कारण का दरम्यान कमीन्सून भरपूर टुर्नामेंट आगामी काळामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. पण नक्कीच खेळाडूंना देखील खूप चांगला डिसिजन घेतला कारण का आपण जर फिट नाहीये तर मैदानाच्या आतमध्ये खेळणं योग्य देखील नसणार आहे. हो नक्कीच, परंतु असं सुद्धा म्हटलं जातं की रिस्क में बरकत आहे. परंतु प्रत्येक खेळाडूची एक वेगवेगळी निर्णय असतात आणि हा निर्णय आपण चांगला म्हणू शकतो कारण या परिस्थितीतली पहिलीच टुर्नामेंट आहे आणि जास्त दुखापत जाणवणार नाही याची त्यांनी मात्र पूर्णपणे विक्रांतने मात्र काळजी घेतली. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय प्रवीणची सुद्धा आपण जर पाहिजे तर उंची खूप छोटी आहे परंतु या खेळाडूच्या कीर्त्या खूप महान आहेत. परंतु या ठिकाणी मेच टाइम पटका लेडिंग घ्या चेंडू हवेत. एसटी रक्षक चेंडूच्या खाली बॅक टू बॅक दुसरा धक्का देतोय यशोपान प्रतिस्पर्धी संघाला आणि प्रवीण मात्र आल्या पावली माघारी परततोय फलंदाज बाद. तर सुरेख गोलंदाज यांनी आता मात्र गोलंदाज सोपान ऑन हॅट्रिक. नवीन फलंदाज गौरव गोंदली, गौरवने सुद्धा मात्र चांगली उपलब्धी प्राप्त केली आहे मागील 2-3 सत्रांचा आपण विचार केला तर, परंतु विकेट हॅट्रिक चेंडूचा मात्र तो सामना करण्यासाठी सज्ज आहे. इथे मात्र या ठिकाणी शॉट पूल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू कार्पेट साने जातो या मिडॉनच्या दिशेने. कॅप्टन सुभाष मोरे होते त्या ठिकाणी, परंतु नक्कीच कॅप्टन पदावरून त्यांनी सुद्धा निवृत्ती घेतली. आता मात्र नवीन संघनायक तुम्हाला मितेशीलम कुरु संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात शैलेशने या संघाची जबाबदारी स्वीकारली. परंतु जबरदस्त कार्य या मॅच मध्ये मितेशीलम कुरु संघाकडे पाहायला मिळतोय. प्रथमतः फलंदाजाने योग्य ते कार्य आपल्या संघासाठी केलं, त्यानंतर गोलंदाज अतिशय चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी साकारतात आणि त्यांना साथ मिळते ती म्हणजे खास करून क्षेत्ररक्षणाची. सोपान पुन्हा एकदा मिस्टर बँक पटका, उंची जास्त, चेंडू हवेत, सुभाष मोरे चेंडूची खाली आणि एक सहज झेल. अजून एक धक्का. अमर स्पोर्ट कासने संघ पूर्णपणे बॅकफुटवर जात असताना दुसऱ्या षटकाच्या खेळामध्ये फलंदाज बाद.
मोठे फटके खेळण्यासाठी, परंतु तुम्हाला पार्टनरशिप सुद्धा करणं गरजेचं आहे. परंतु तसं काही घडलं नाही, कारण कल्पेश बाद झाला 6 धावांवर. त्यानंतर पाहू शकता आपण प्रवीण शून्यावर माघारी परतले. त्यानंतर गौरव गोंधले आले. गौरव गोंधले सुद्धा मात्र पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, तो सुद्धा शून्यावर माघारी परतले. आणि आता मात्र 6व्या क्रमांकावर येतो एक फलंदाज निलेश सोपान. पुन्हा एकदा या चेंडूवर सुद्धा मात्र मोठा प्रहार करायचा प्रयत्न, तो चेंडू मात्र टावल झाला. खूप मोठा गॅप आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. भरपूर मोठं अंतर कापत सोन्या पठाराने चेंडूला उचललं, फेकलं. तत्पुरती 2 धावा येथे फलंदाजाने पूर्ण केल्या. आणि अशा रीतीने मात्र दुसऱ्या पॉवर प्ले षटकाची सुद्धा समाप्ती या ठिकाणी झाली आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर फक्त आणि फक्त धावा आपल्या स्कोर कार्डवर पाहायला मिळत आहेत. 3 गडी बाद 17. टार्गेट आहे 71 धावांचा. अजूनही विजयासाठी भरपूर धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 18. आणि या 3 षटकामध्ये हा टार्गेट पूर्ण करेल का अमरस्फोट कासने संघ, की गोलंदाज ज्याप्रमाणे चालू आहे या 2 षटकामध्ये ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली आहे तशा प्रकारची गोलंदाजी तुम्हाला या येणाऱ्या 3 षटकात सुद्धा पाहायला मिळेल. तर आपण ऐकूया माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ मानेरे राहुल भोईर यांच्या स्वमधुर वाणीतून. सुपर ट्रॉफी आहे आणि सर्वजण या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. आणि या स्पर्धेला आणि जी त्रिमूर्ती आहे रोशन पाटील, त्रिशूल ठाकरे, निवा पाटील या सर्वांनाच मात्र शुभेच्छा आलेल्या आहेत. एकविरास्फोट भादाणे संघाच्या वतीने धन्यवाद. एकविरास्फोट भादाणे तुमचं सुद्धा मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आणि आता मात्र आपण ऐकूया राहुल भोईर यांना. 17 धावा स्कोअर बोर्डवरती. थँक्यू योगेश पाटील. 17 धावा स्कोअर बोर्डवरती. अजूनही विजय भरपूर दूर आहे. चांगला खेळ करावा लागेल अमर स्पोर्ट्स कासने संघाला. चला वेळ कमी घ्यायचे. फर्स्ट ऑन, पहिली वॉर्निंग या दरम्यान येते मितेश 11 कुरुन टीमला. सुमित ओव्हर द विकेट न फुल टॉस आहे. खूप चांगला फटका देखील खेळले. डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित आहेत पॉइंटला. चेंडू चोचून फेक करेपर्यंत एकच धावीतनं मिळेल. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 पुढे जाते. धावफलक आपल्याला एकूण पाहायला मिळतोय 18 या धावफलकावरती. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली. 71 धावसंख्येचा पाठलाग करतो या मॅच मध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी मोठा संघर्ष करायचा आहे अमर स्पोर्ट्स कासने टीमला. ओव्हर द विकेट ना पुढचा बॉल समोरच्या दिशेनं फटका खेळले. तिथे फिल्डर मात्र उपस्थित आहे. चूक होणार नाहीये. अजून एक धक्का लागत असताना अमर स्पोर्ट्स कासने संघ पूर्णपणे बागफुटला आपल्याला पाहायला मिळतो या मॅच मध्ये. खेळाडू बाद. ओव्हर द विकेट. फुल टॉस इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न. खूप चांगली फिल्डिंग. निवा पाटील तिथे उपस्थित होते स्लीपर कव्हरच्या दिशेनं. चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. आयोजक देखील आहेत आणि आता मात्र आपल्या गावासाठी आपल्या टीमसाठी सातत्यानं निवा पाटीलला खूप चांगल्या प्रकारचा खेळ केला. आणि अजूनही त्यांच्याकडे चांगला क्रिकेट आहे. चांगला खेळ माझ्याकडे आहे. फिल्डिंग बघा किती चांगली आपल्याला पाहायला भेटली.
मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंडू पडला अचानक थोडासा बॉन्स देखील झाला. स्टिक वरती होता चेंडू. डॉट. संघाची धावसंख्या 19 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. ओव्हर द विकेट ना. समोरच्या दिशेनं खेळत फटका फसला. मिस्तामिंग शॉट. इथं फिल्डर देखील आहेत उपस्थित. अजून एक विकेटचं पतन. भरपूर चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते करून टीमची या मॅच मध्ये पूर्णपणे बाग फुटला अमर स्पोर्ट्स कासने. डीजे या दरम्यान एक धावीत नमेल. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या आपल्याला 20 वर पाहायला मिळते. एकूण 3 धावा खर्च केल्या. गोलंदाज या षटकामध्ये आपण बघितलं सुमितला. 12 चेंडू 51ची अजूनही गरज आहे. वेळ कमी घ्या अजिबात. तुम्हाला आता एकत्र यायचं नाहीये. प्लीज थोडं सहकार्य करा. या पुढची अजून एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. गणेश 11 कुकसे शकीन्स आपल्याला संघ पाहायला मिळेल. शिवशक्ती क्रिकेट संघ कोशिंबे. एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. टायगर राम ठाकरेचा संघ आपल्याला एका बाजूने पाहायला मिळेल. त्यांच्या अगेन्स्ट प्रेम त्याच्यानंतर पंकज आपल्याला संघ पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये. चांगला खेळ पहिल्या मॅच मध्ये. एक एक मॅच जिंकली दोन्ही टीम ना. बघूया पुढच्या मॅच मध्ये कसा खेळ होतोय. महेंद्र पाटील हे देखील इनॅक्शन मध्ये असतील पुढच्या मॅच मध्ये. टॉप एज मिसामिंग फटका. अजून एक विकेट. चांगली गोलंदाजी. सहा सहा. दरम्यान हा फटका चांगला आहे आणि धावा चांगल्या मिळतील. असेच काही फटके मारावे लागतील. हा चौकार. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 24 वरती. सेकंड स्पेल मध्ये आहेत गोलंदाज सोपान पहिल्या स्पेल मध्ये इम्प्रेस केलं होतं. चांगला चेंडू. डॉट. सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट गोलंदाजी भरपूर चांगली आपल्याला पाहायला मिळते सोपानच्या माध्यमातून. अमर कासने संघ पूर्णपणे बागफुटला. त्याचं कारण चांगली गोलंदाजी मितेश हिरवण करून टीमची चांगली बॅटिंग पहिल्या इनिंग मध्ये झाली आणि आता मात्र आपल्याला चांगली गोलंदाजी या सेकंड इनिंग मध्ये पाहायला मिळते. स्पर्धेचा दुसरा दिवस. सुपर ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते. एक नवीन संकल्पना या स्पर्धेच्या माध्यमातून. टॉप एज मिसामिंग फटका. जेलची पुन्हा एकदा संधी आणि अजून एक फलंदाज बाद.
5 विकेट सोपानच्या या स्पेलमध्ये आपण बघतो. जबरदस्त गोलंदाजी. सोपं नाहीये विकेट घेणं. आणि आता बघतो आपण टेनिस बॉल क्रिकेट भरपूर फास्ट झालाय. इथे एक चांगला गोलंदाज बनणं एवढं सोपं नाहीये. फलंदाज भरपूर असतात प्रत्येकी टीमकडं, मात्र चांगले गोलंदाज आपल्याला भरपूर कमी पाहायला मिळतात. प्रत्येकी टीम मध्ये 2-3 नक्कीच आपल्याला गोलंदाज रेग्युलर पाहायला मिळतात, पण ते कधी कधी पार्ट टाइम गोलंदाज आपल्याला प्रत्येकी मॅच मध्ये पाहायला मिळतात. आणि 5 विकेट त्यांनी कंप्लीट केलेत. सोपा चांगली गोलंदाजी. ओव्हर द विकेट ना, फक्त दरम्यान सन्मान दिला चेंडूला. एक धावीतनं मेल. एका धावीच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 पुढे जाते. धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतो 25 वरती. 25 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक 4 मार्ग असते. ओव्हर द विकेट. दरम्यानचा अजून एक चांगला चेंडू. हा देखील चेंडू आला डॉट. चला करून संघ थोडासा वेळ कमी घ्या प्लीज. लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्या. हे सर्व नक्कीच आमचे पुरस्कर्ते रुपेश पाटील, शरद भोईर, जगन पाटील, भगवान भोईर सर्व नक्कीच आमच्या दरम्यान दानशो दाते आणि सर्व आमचे मान्यवर नक्कीच तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतील. या सर्वांचा चांगला सहकार्य या स्पर्धेसाठी लाभला आणि असा सहकार्य तुमचा सातत्यानं असणं गरजेचं आहे. मोटिवेशन खूप महत्वाचं आहे. चला कुरुल संघ प्लीज थोडं सहकार्य करा. सामना सुरू करा प्लीज. चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. स्मारकाच्या माध्यमातून खेळले. चेंडू जाईल शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेनं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. चार न पुढे जाते. 29 धावा. व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा धावीतनं मेल. 30 धावा स्कोर बोर्ड वरती. ऑनट्रायचा फटका. फटामध्ये सुंदर वापर. आउटफील्ड मध्ये तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली. चेंडू चोचून फेक करेपर्यंत 2 धावा. सिंगल डबलने कुठलाही फरक पडणार नाही. आता मात्र वेळ निघून गेली. आता मात्र काही औपचारिकता बाकी आहे. काही चेंडू या दरम्यानचे फक्त फेकायचे आहेत. सामना जिंकणं एवढं सोपं राहिलं नाहीये. चांगला चेंडू. डॉट बॉल. दिनेश 11 कुकशे. चला आपण सज्ज राहायचं आहे. फिल्डिंग करणार आहे. प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकून फिल्डिंग स्वीकारली. एक धाव. लेग बाय सेशन अंपायर झाला. संघाची धावसंख्या 33. समोर खेळले आणि फलंदाज बाद. रनआउट.
बद्दल सुपर ट्रॉफीच्या आयोजकांच्या माध्यमातून तुमचं मनापासून आभार. या सामन्याचे दरम्यान मॅन ऑफ द मॅच नक्कीच आम्ही अलॉसमेंट करणारच आहोत. तर सोपानला आपण देऊ या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच, ज्यानं 9 धावा देखील बनवल्या आणि 5 विकेट घेतल्या तब्बल. तो या दरम्यान सोपान ठरला या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. या सामन्या